were students, they tried to attempt, they tried to solve the questions. नहीं हो पाए, that's something different. ठीक है? तो I am here to help you out. ये WhatsApp का ग्रुप इसीलिए बना है कि जहां पे आप लोगों को प्रॉब्लम हो आप मेरे से पूछें और उन प्रॉब्लम्स को आप क्लियर करें. ठीक है? तो आज भी जो आप लोगों को काम मिलेगा, आप लोगों ने ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव पार्टिसिपेटेड एंड हु हैव सेंड मी द सॉल्यूशंस, अब ये जो है आप लोग इसको 21 पे लेकर आए. ठीक है? आप लोगों को हाफ एन आवर लगेगा, इससे ज्यादा टाइम आप लोगों का वेस्ट नहीं होगा. इफ यू थिंक इट्स वेस्टेज ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेसन. अच्छा जी, yesterday we studied how to find variance and standard deviation. ठीक है? We did some of the questions. आज हम कुछ क्वेश्चंस इस तरह से करेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं है, मैथमेटिकल फॉर्म में डाटा गिवन है और वहां से हम लोगों ने कभी वो कहेगा जैसे here are some questions in front of us, ये एक्सरसाइज 3C, ये आप लोगों को एट द एंड ऑफ द क्लास आप लोगों के पास ये वर्कशीट आ जाएगी. तो आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस वर्कशीट वंस विद यू. ये फर्स्ट में देखें कि आपको सम v स्क्वायर गिवन है, समेशन ऑफ v इज गिवन, नंबर ऑफ वैल्यूज इज गिवन, ही इज टेलिंग अस फाइंड द वेरिएंस ऑफ v. ठीक है? सेकंड पार्ट में अगेन सम w स्क्वायर, मीन इज गिवन हियर, नंबर ऑफ वैल्यूज इज गिवन. ठीक है? एंड ही इज टेलिंग अस टू फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है? तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले यू विल जस्ट राइट द फॉर्मूला कि यहाँ पे हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पे, एंड वी कैन फाइंड आउट द वैल्यूज. द फर्स्ट वन इज वेरी सिंपल. इफ यू वांट टू फाइंड वेरिएंस ऑफ v is the variable used here. Variance of v, हमारे पास क्या फॉर्मूला है? We know the formula is sum of x square. अब x square की जगह पे v square आ जाएगा. Sum v square over n is the number of values, minus v bar. V bar is the mean of values of v, the whole square. ठीक है? And in this case these values are not grouped क्योंकि इसमें frequency नहीं है. So what would be the v bar? V bar would be sum v over n. Now look, what all values do we have here? We have some v square. ठीक है? Some v square की value will be substituted here. और v bar के लिए we need some v over n. Some v is given. This is some v. This is n, and number of values is also given. Simply अब values को यहाँ पे substitute करेंगे. First you will find out the mean. Then you will substitute this value in this formula and you will get the value of the variance. Simple. Second part में थोड़ा सा different है, वो हमें कह रहे हैं standard deviation of w आप find करें. Formula तो of course same use होगा, लेकिन यहाँ पे देखें he has given us the mean of w values. मतलब कि आप लोगों को अब mean find करने की जरूरत नहीं, it's given directly. You can do it easily. Look at the next one. The C part, I'm discussing the C part. ये अभी आप लोगों को solve करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने घर पे solve करने हैं. I'm just discussing these questions with you. C part, कुछ note करना चाहें तो आप कर सकते हैं. Okay, some x square f या fx square, the same thing. It's given. Then some f is given, and standard deviation of x is 12. Now in this case, he has given us the standard deviation. Standard deviation of x is 12. He's telling us find out some fx. He's telling us to find out this. ठीक है? तो standard deviation is given. तो अब what will we do? We'll start with formula for standard deviation. Standard deviation of x is square root of sum x square of over here the values are in form of grouped, so sum fx square over sum f minus x bar square, x bar the whole square. Okay, what is the mean here?
In this case, the mean is x bar is equals to sum fx over sum f. Now, let's get back to our question. In this question, we have sum fx square, we have sum f, ठीक है? जितनी information हमारे पास है वो हम substitute करेंगे and we can find out the unknown. ठीक है? Let's start our work. Standard deviation is what? Standard deviation is given, it's 12. Let's substitute the values. 12 is equals to square root of sum fx square. Sum fx square is given at 6120. 6120 over sum f. What is sum f in this case? It's 40 over 40 minus x bar the whole square. Do we have the value of x bar? We don't have. अगर आप चाहें तो आप ये value substitute कर सकते हैं, लेकिन substituting this value is not a good idea at this point. You can just write it as x bar itself. X bar the whole square. अब आपने इसको सॉल्व करना है. यू आर गोइंग टू सॉल्व इट फॉर एक्स बार का स्क्वायर. ठीक है, सॉल्व इट फॉर एक्स बार का स्क्वायर. सो हाउ कैन वी सॉल्व दिस फॉर एक्स बार का स्क्वायर? सिंपली व्हाट विल वी डू? वी विल टेक एक्स बार has to stay here. First of all, we'll take square on both sides. ठीक है? I'm just going to use this directly over here. 12 square and on this side as well is complete का हमारे पास आ जाएगा square. Hello? सर मुझे वीडियो भी नजर नहीं आ रहा और आवाज भी नहीं आ रही. नहीं, आवाज अब आएगी. हमने वो म्यूट किया हुआ था सन में. अच्छा ठीक है, और वीडियो ऑन रहने दें. ओके, थैंक यू. ओके, तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे दोनों साइड्स के ऊपर आप स्क्वायर ले लेंगे. यहाँ पे डायरेक्टली हमारे पास ये जो वैल्यूज हैं ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट. मैं अगर डायरेक्टली इस तरह कट करूं, अगर किसी स्टूडेंट के माइंड में कोई कंफ्यूजन आती है तो मुझे यहाँ पे बता दें. मैं बस इसको दोबारा लिखना नहीं चाह रही. दैट्स व्हाई आई जस्ट कैंसल्ड इट. ठीक है, हो गया क्लियर? स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया. ठीक है, अब 12 का स्क्वायर इट वुड बी 144. 144 is equals to, it's going to be, I'm not going to solve these values, ये जैसी हैं मैं वैसे ही लिख रही हूँ. 6120 over 40 minus x bar square. Okay, now from here onward you will do this work yourself. आप इसको solve करेंगे, आप mean की value find कर लेंगे. Okay, now let's suppose you have found the value of mean. When you have found the value of mean, पहले तो mean square की value आएगी. ठीक है, then you will take square root on both sides. तो आपके पास mean आ जाएगा. You have got the mean. Okay, in grouped value, let's suppose I'm going to take a value over here for mean. Let's suppose the mean is, I'm just supposing, let's suppose it's 12. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे group data था. What is the formula for mean? The formula for mean is x bar is equals to sum fx over sum f. ठीक है, now mean is given, तो mean की जगह पे आप लिख सकते हैं ये जो mean की वैल्यू आपके पास 12 आई है. In place of this you can write 12. In place of sum f you have the value of sum f 40. आप यहाँ पे 40 लिख सकते हैं. आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, you will get value of sum f fx. ठीक है, अब ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके पास, इन सब में ऐसी ही वर्किंग आपने करनी है और यू कैन गेट द सॉल्यूशंस. ये मैंने ए बी और सी पार्ट आप लोगों के साथ डिस्कस किया है. ये डी एंड ई ये मैं डिस्कस नहीं करूंगी, यू विल डू इट ऑन योर ओन. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग इसको खुद करेंगे. ठीक है, एंड आई होप कि आप लोगों को इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगा. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड.
आज हमने मेन जो काम करना है वो हमने करना है कि लेट मी main focus is going to be on combined sets. ठीक है, combined sets I have discussed with you some lectures before as well. Let's see कि कितना जो है वो आप लोगों को याद है combined sets का. ये ग्रे कैप किसने पहनी है? नाफे ने, नाफे। हेलो हेलो, हेलो, यस मैम, ये नाफे से बात कर लें। नाफे, ये अब्दुल नाफे। मैम मैंने पहनी है क्या सब? आप पूछ रही थी। हाँ मुझे पता है, मैं वैसे आपसे बात बेटा मैं वैसे आपसे बात कर रही हूँ। आप क्लास में प्रेजेंट है ना? मैम आज आया हूँ, इस वीक नहीं था आया। अच्छा ठीक है, आप ठीक हैं? हाँ जी। I cannot hear you. हेलो Hello. हेलो मैम, अब आवाज आ रही? हेलो हेलो। Yes sir, I can hear you now. ऑलराइट, यस मैम। Yes अब्दुल नाफे, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप ठीक हैं? जी मैम। अच्छा ठीक है, तो फिर आपकी जो प्रेजेंस है, जिस तरह से मैं आपको P1 पढ़ाते हुए जिस तरह से छोड़कर आई हुई हूँ ना, एक्टिव पार्टिसिपेंट, वैसा अब्दुल नाफे जो है ना वापस मुझे अब क्लास में नजर आए। ठीक है, जी मैम। ओके ओके। चलें बेटा, अब हम जरा आगे चलते हैं। कंबाइंड सेट्स, इन कंबाइंड सेट्स इफ यू वांट टू फाइंड मीन या वेरिएंस में, ठीक है, लेट्स सी हाउ वी कैन डू दिस। दिस क्वेश्चन नंबर 2, दीज आर सम वर्ड प्रॉब्लम्स आप लोगों के सामने है, जरा आप लोग भी इसको आप लोग खुद पर्सनली देखें, इसको देख रही हूं कि व्हाट इज ही आस्किंग, हाउ वी कैन फाइंड इट, इज इट अ सिंपल क्वेश्चन और इज इट समथिंग डिफरेंट? पढ़ के मुझे बता दें, इज इट सिंपल और इज इट समथिंग व्हिच आई शुड एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 2, मैम ये मुबीन कह रहा है सिंपल है। ओके, तो क्योंकि इसमें सम एक्स स्क्वायर इज गिवन, सम एक्स इज गिवन, ठीक है, नंबर और स्टैंडर्ड डिविएशन इज आल्सो गिवन, ठीक है, वी जस्ट नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ number of companies. Okay, it is simple question. Now let's go to question number 3. Question number 3, अब इसको भी आप लोग जरा एक दफा रीड आउट कर लें। Is it simple या फिर थोड़ा सा complicated है? I will discuss if it's a bit complicated. $25 values, ये मैं थोड़ा सा आप लोगों से डिस्कस करती हूँ। 25 values of P such that some P square is this, and ये इसको 25 values of P, some P square is this, some P is this, and he's telling again 25 values हैं हमारे पास for variable Q as well, and some Q square is given and some Q is given. ठीक है, these are two data sets. He's telling us calculate the variance of 50 values of P and Q together. वही combined set अब यहाँ पे हमारे पास आ गया है। तो जब भी आपके पास you have to combine two sets and you want to find their variance या मीन, क्योंकि सबसे पहले तो हम मीन फाइंड करेंगे ना वेरिएंस को फाइंड करने के लिए, ठीक है,
तो लेट्स सी, मैं जो कंबाइंड सेट है आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए आई एम गिविंग इट द नेम सी. द कंबाइंड सेट मीन अगर आपने फाइंड करना है वो किसके इक्वल होगा आपके पास? टोटल ऑफ द वैल्यूज, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ बोथ द सेट्स. ठीक है, हमारे पास जो सेट P है उसमें सम ऑफ वैल्यूज इज हाउ मच? दैट सम P. मैं उसको लिख रही हूँ, मैं आई एम नॉट गोइंग टू राइट द वैल्यू, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट सम ऑफ P, क्योंकि यू नो सम ऑफ P इज 388. आई एम जस्ट राइटिंग सम P प्लस sum of the set of values ये Q, पूरा नहीं नजर आ रहा. sum Q. पूरा नहीं नजर आ रहा. ओके ओके, हाँ जी, अब now you can see it. यार इसको मैम नजर आ रहा है बिल्कुल. Now you can see it. जी. ओके ओके, तो कंबाइंड सेट के लिए सबसे पहले आपने कंबाइंड टोटल फाइंड करना है एंड देन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से आपने डिवाइड करना है. ओके, सेट P की हमारे पास वैल्यूज थी 25 और सेट Q की कितनी वैल्यूज हैं? वो भी हैं 25 प्लस 25. ठीक है, सो ये हमारे पास है कंबाइंड सेट के लिए. हमने दोनों सेट्स की वैल्यूज का सम एड अप करना है एंड देन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जो सेट P की हैं, सेट Q की हैं, टोटल वैल्यूज हमारे पास कितनी हैं? इन दिस केस वी हैव 50. ठीक है, तो सम P प्लस सम Q दैट यू विल राइट हियर एंड 25 प्लस 25 50 over here. You will divide this and you will get the value of the combined mean. Continue it. Variance. Okay. मैम एक बार अगर फिर से आपने repeat कर वेरिएंस दे. फाइंड करना है, वेरिएंस ऑफ, ओके ओके ओके, आई विल रिपीट इट अगेन. ये कंबाइंड सेट है हमारे पास. ठीक है, आप लोगों ने क्योंकि वो प्रीवियस क्वेश्चंस नहीं किए हुए कि जिसमें कंबाइंड मीन आप फाइंड कर पाते, तो इस तरह से अब ये वाले क्वेश्चन में आप लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी. सो आई विल एक्सप्लेन इट वंस अगेन. कंबाइंड सेट, if you're combining two sets, if you want to find their mean, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम उन दोनों सेट्स का जो सम है, सम ऑफ द फर्स्ट सेट, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ द फर्स्ट सेट, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ द सेकंड मैम सेट, स्क्रीन शो नहीं हो रही. ये हो गया अब हमारे पास टोटल. मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही. ओके, अच्छा ठीक है. Now you can see it. मैम नहीं आई अभी. Okay. मेरे ख्याल से हमारा इंटरनेट इशू में मसला है. आप शो हो रही है? नो मैम. नो, यहाँ पर से तो आ रहा है ऑप्शन के स्क्रीन इज शेयरिंग. मैम मेरे ख्याल से अब क्लास कल ही कंटिन्यू होगी. इंटरनेट प्रॉब्लम है और टाइम भी अब ओवर हो रहा है.